حیا اور پاکدامنی آڈیو بک حصہ 12 حجاب و پردے کے دلائل حدیث پاک سے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نیک بخت اور عزت دار عورت کا نشان گھونگھٹ ہے تاکہ بد نیت فاسق اور فاجر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی ضرورت کے تحت گھر سے نکلے تو اپنے چہرے کو سروں کی طرف سے چادر سے ڈھانپ لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے پردگی شریف اور غیرت مند عورت کا کام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے، بس عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو غیر محرم مردوں سے چھپائے۔ اگر گھر میں رہ کر چھپائے تو سب سے افضل ہے تاکہ کوئی مرد اس کی جسامت یعنی ڈیل ڈول اور چال ڈھال کو نہ دیکھ سکے۔ اگر کسی شرعی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو جسم اور کپڑوں کی زیب و زینت کو چادر یا برقعے وغیرہ سے چھپائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی نفس پرست آدمی کی نظر پڑے اور وہ اس عورت کی عزت کو خراب کرنے کے منصوبے تیار کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے صحابہ کرام سے سوال پوچھا، عورتوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ اسی دوران مجھے گھر جانا پڑا تو میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہی سوال پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ نہ وہ تو مردوں کو دیکھے اور نہ ہی مرد ان کو دیکھے۔ میں نے یہ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، معرف القرآن۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ پردے کا منشا حیا ہے اور حیا عورت کی فطرت ہے۔ جب عورت ضمیر کے خلاف کام کرتی ہے تو بے حیا بن جاتی ہے اور شرم و حیا کو ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تو بے حیا بن جائے تو پھر جو چاہے کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے حیائی بے پردگی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو حیا جیسی نعمت سے محروم نہ فرمائے، آمین۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے۔ شیطان جھانکتا ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو شیطان لعین اسے گھر سے نکلتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اب اس کو غیر محرم کی طرف اور غیر محرم کو اس کی طرف مائل کرنے میں آسانی ہو گئی۔ شیطان اس عورت کو بد نظری کرواتا ہے اور غیر محرم کو اس کے جال میں پھنساتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ شیطانی شہوانی نفسانی زندگی گزارنے والے لوگ عورت کو گھر سے باہر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ایسے فاسق و فاجر لوگ شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ان کے جھانکنے کو شیطان کا جھانکنا کہا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت مرد کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ پردہ واجب ہونے کا مدار فتنہ ہے۔ اس لیے بوڑھی عورت جس کی طرف جنسی میلان نہیں رہتا، اس کے چہرے کا پردہ کرنے میں نرمی دی گئی۔ جوان عورت کی طرف مرد کا میلان فطری طور پر زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا اسے پردے میں رہنا چاہیے۔ اگر عورت کسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے تاکہ اس کے ذریعے سے شیطان مردوں کو فتنے میں نہ ڈال سکے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، میں اس کمرے میں داخل ہوتی جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام دفن ہے تو اپنی چادر رکھ دیتی اور کہتی تھی کہ یہاں تو صرف میرے شوہر اور میرے والد دفن ہے، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا تو اللہ کی قسم میں ان سے حیا کی وجہ سے
खूब अच्छी तरह पर्दा कर लिया करती थी। इससे पर्दे की अहमियत का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तो कब्र में दफन आदमी से भी पर्दा कर रही है, जबकि आज की बेपर्दा औरतें ज़िंदा जीते जागते मर्दों से पर्दा नहीं करती। दीनदार औरतों के लिए हज़रत आयशा का अमल रोशनी का मीनारा है। हदीस पाक में आया है, एक बार उम्मुल मोमिनीन हफ्सा और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठी हुई थी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु घर में दाखिल हुए। ये नाबीना सहाबी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों से फरमाया कि पर्दा करो। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या ये नाबीना नहीं है? न हमें देख सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम दोनों भी नाबीना हो? क्या तुम इसे देख नहीं रही हो? पर्दे की अहमियत पर इससे ज़्यादा वाज़े और बड़ी दलील और क्या हो सकती है। अक़ली दलाइल। एक बुज़ुर्ग रेलगाड़ी से लाहौर से ज़ैक़बाबाद आ रहे थे। रास्ते में किसी स्टेशन पर एक कोट पतलून पहने नई तहज़ीब के चाहने वाले नौजवान सवार हुए। थोड़ी देर के बाद नौजवान ने बुज़ुर्ग से पूछा, आप मुझे दीन इस्लाम के आलिम नज़र आ रहे हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, जी हाँ, आप पूछें। नौजवान ने कहा, इस्लाम इस बात की इजाज़त क्यों नहीं देता कि मर्द और औरतें इकट्ठे मिलकर काम किया करें? बुज़ुर्ग ने उस नौजवान को कुरान व हदीस की रोशनी में कई जवाबात दिए, मगर नौजवान की तबीयत मुतमईन न हुई। वो कहने लगा कि आप मुझे अक़ली दलील से समझाएं कि इसमें क्या रुकावट है। बुज़ुर्ग ने फरमाया कि जब मर्द और औरतें मिलकर काम करेंगे तो दिल एक दूसरे की तरफ माइल होंगे, कई हंसते बसते घर उजड़ जाएंगे, कई कुंवारी लड़कियां बिन ब्याहे माएँ बन जाएंगी, समाज में फसाद मच जाएगा। नौजवान ने कहा कि इंसान अगर अपनी तबीयत पर कंट्रोल करे तो लड़का लड़की मिली जुली तालीम या नौकरी में क्या हर्ज है। बुज़ुर्ग ने देखा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो सोचा कि टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। ये नौजवान अकल का अंधा है, इसके दिमाग पर भी पर्दा है, लिहाजा इसको दूसरे अंदाज से समझाना पड़ेगा। उनकी टोकरी में नींबू रखा था, उन्होंने निकाल कर 4 टुकड़े किए और चूसने लगे। नौजवान भी गर्मी की शिद्दत की वजह से ललचाई हुई नज़रों से उनकी तरफ देखने लगा। उन्होंने पूछा कि आप क्या देख रहे हैं? नौजवान ने कहा, नींबू देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। बुज़ुर्ग ने कहा, अब तबीयत पर कंट्रोल का मसला क्या बना? अगर नींबू देखकर मुंह में पानी आ जाता है, इसी तरह नौजवान गैर महरम लड़की को देखकर दिल में गुनाह का ख्याल आ ही जाता है और यही चीज़ ज़िना का सबब बनती है। दीन इस्लाम ने इस बुराई का रास्ता रोकने के लिए औरत को हुक्म दिया कि अव्वल तो घर में ही रहे, अगर किसी ज़रूरत के तहत निकलना पड़े तो पर्दे में निकले ताकि गैर मर्दों की नज़र न पड़े और वह किसी मुसीबत में गिरफ़्तार न हो। नौजवान ने शर्म से सर झुका लिया। नंबर 2, अगर किसी आदमी के ज़िम्मे ड्यूटी लगाई जाए कि 1 लाख रुपए की रकम एक शहर से दूसरे शहर किसी आदमी को पहुंचा दे, तो आदमी अव्वल तो रकम ले जाने से घबराएगा कि रास्ते में जेब कतरे होते हैं, ऐसा न हो कि मेरी जेब की रकम ही गायब कर दे, बल्कि अगर किसी चोर डाकू को पता चल गया तो वो तो जान से ही मार देगा और रकम ही उड़ाएगा। इससे बेहतर है कि इसको बैंक वगैरह के ज़रिए ट्रांसफ़र करवा दिया जाए ताकि किसी को पता ही न चले। अगर उसे मजबूर किया जाए कि इसके सिवा कोई चारा नहीं कि आप रकम खुद पहुंचाए, तो वह आदमी इस रकम को पोशीदा जेब या जगह में डालेगा और सारे रास्ते फ़िक्रमंद रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह स्टेशन पर लोगों के सामने रकम निकाल कर गिनना शुरू कर दे। ये तो दूसरे लोगों को दावत देना होगी कि आ बैल मुझे मार। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई नेक औरत घर की 4 दीवारी से बाहर निकलना चाहे तो अव्वल तो वह घबराती है कि मुझे बिला वजह
को बाहर जाना पड़ा। अगर मजबूरी और माजूरी और ज़रूरत हो तो वह बापर्दा होकर निकलती है और रास्ते में फ़िक्रमंद रहती है कि कोई उचक्का बदमाश उसके पीछे न लग जाए। यह कभी नहीं हो सकता कि वह गैर मर्दों के मजमूए में अपनी ज़ेब व ज़ीनत का इजहार करे और अपनी इज्जत दांव पर लगाए। अगर कोई बदनीयत आदमी उसके पीछे पड़ गया तो इज्जत भी लूट लेगा और जान से भी मार देगा। शरअ शरीफ में इसलिए पर्दे का हुक्म दिया गया है ताकि औरतों की इज्जत व नामूस पर कोई हाथ न डाल सके। जो लड़कियां फैशनेबल बेपर्दा बनकर बाज़ारों में घूमती फिरती है, उनके अगवा वगैरह के वाक़यात रोज़ाना अखबारों की ज़ीनत बनते हैं। वे दूसरों को तमाशा दिखाती दिखाती खुद ही दूसरों के लिए तमाशा बन जाती है। नंबर 3, अगर किसी आदमी ने कसाब की दुकान से चंद किलो गोश्त खरीदना है तो उसे कपड़े या थैले वगैरह में छिपा कर घर ले जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वह गोश्त को थाल में डालकर सर पर रखे और रास्ते में चले। उसे खतरा होता है कि चील कौवे वगैरह झपट पड़ेंगे और गोश्त को उड़ा ले जाएंगे। इसी तरह अगर 50 किलो की नौजवान लड़की घर से बेपर्दा हालत में निकले तो इंसानी भेड़िए उसके गिर्द मंडलाना शुरू कर दे और कई बार तो पूरे 50 किलो को ही गायब कर देते हैं। इसलिए नेक औरतें पर्दे में लिपट कर निकलती है। उनकी जान, माल और इज्जत व आबरू पर कोई हमलावर न हो सके। सोचने की बात है कि जो लोग अपनी जवान बेटियों को बेपर्दा निकलने की इजाज़त दे देते हैं, क्या उनकी नज़र में बेटी की कदर व कीमत चंद किलो गोश्त के बराबर भी नहीं है? हैरत की बात है कि परिंदे गोश्त ले गए तो सिर्फ माली नुकसान होगा जिसकी भरपाई हो सकती है, और अगर किसी ने बेटी की इज्जत ख़राब कर दी तो इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। दिल कहेगा अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। नंबर 4, हर इंसान को अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर गैरत का जज्बा अता किया है। वह हरगिज़ नहीं चाहता कि कोई गैर आदमी उसके घर की औरतों पर बुरी नज़र उठाए। अगर वह किसी को अपनी महरम औरतों से बुराई करता हुआ देखे तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि मरने मारने पर तुल जाता है। कई बार तो खाविंद अपनी बीवी को या बाप अपने बेटी को या भाई अपने बहन को और बेटा अपनी माँ को कत्ल कर देता है। नंबर 5, आजकल अखबारों में इस तरह की खबरें छपती रहती है कि एक औरत की बेपर्दगी कई ख़ानदानों की इज्जत खाक में मिला देती है। लिहाजा इंसानी गैरत और ईमानी गैरत का तकाजा है कि औरत हिजाब में पहन कर निकले और मर्द लोग अपनी नज़रें नीची रखें ताकि समाज में फसाद न फैले। नंबर 6, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों के बारे में फरमाया, अकल और दीन के एतबार से नाकिस। औरत की फितरत है कि वह उमूमन फिसलती भी जल्दी है और फिसलाती भी जल्दी है। बड़े बड़े अक्लमंदों की अकल पर पर्दा डाल देती है। जज्बाती होने की वजह से घड़ी में तोला तो घड़ी में माशा होती है। इसलिए शरीयत ने तलाक का हक मर्द के इख्तियार में रखा है। अगर मान ले कि औरत को इख्तियार दे दिया जाता तो वह एक दिन में 70 मरतबा तलाक देती और 70 मरतबा रुजू करती। किसी से खुश हो तो अपना सब कुछ उसके खातिर लुटा देती है। अगर किसी से नाराज़ हो तो उसे ज़िंदा भी देखना नहीं चाहती। अंदर खाने ज़्यादती भी खुद करती है, मगर लोगों की निगाह में मज़लूम बनकर दिखा देती है। एक काम करने को अपना दिल चाह रहा होता है, मगर ज़बान से नाना कह रही होती है। ज़रा सी नोक झोंक पर शोहर की सारी ज़िंदगी की खुश अखलाकी पर पानी फेर देती है। कहती है, मैंने तेरे घर में आकर देखा ही क्या है। तू जो कुछ करता है अपने लिए करता है, मेरे लिए नहीं करता। मामूली बात पर लानत भेजना शुरू कर देती है। कमज़ोर तो है, फिर अपने मरने की दुआएं करने लग जाती है। माल की मोहब्बत इस कदर होती है कि अगर मियाँ कहे कि हम आपके जिस्म में कीले ठोकना चाहते हैं, मगर होंगी सोने की, तो फ़ौरन पूछेंगी, फिर क्यों देर कर रहे हो, जल्दी करें ना आप, अपना काम जल्दी समेटे। गुस्से और हसद की आग में जल भुनकर कबाब बनी
हुई होती है। फैशन की इतनी दीवानी कि चाहती है कि जैसे कपड़े मैं पहनूं वैसा कोई दूसरा न पहने। अगर एक बार कपड़े पहन लिए तो उतार कर किसी दूसरे को दे दूं, दोबारा धोकर न पहनने पड़े। कोई तारीफ कर दे तो फूली नहीं समाती, दुश्मन को दोस्त और गैर को अपना समझना शुरू कर देती है। तबीयत के इस उतार चढ़ाव की वजह से कहा जाता है कि उसकी अकल कामिल नहीं नाकिस है, लिहाजा उसका घर की चार दीवारी में रहना ही उसके लिए बेहतर है। अगर कोई आदमी पूरा पागल हो तो उसे पागल खाने के कमरे में बंद रखा जाता है। औरत क्योंकि नाकिसुल अकल है, लिहाजा उसे ज़रा बड़ी जगह यानी घर की चार दीवारी में रहने को कहा जाता है। अगर बाहर निकलना है तो पर्दे में लिपट कर निकले और महरम मर्द के साथ निकले, ताकि न तो यह किसी का ईमान ख़राब करे न ही कोई इसकी इज्जत ख़राब करे। शरई पर्दे के 3 दर्जे हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुख्तलिफ़ आयतों पर गौर करने से ये बात वाज़े होती है कि शरई पर्दे के 3 दर्जे हैं। सबसे बेहतर दर्जा, दूसरा दरमियानी दर्जा और तीसरा निचला दर्जा। मुख्तलिफ़ औरतों के मुख्तलिफ़ हालात की सूरत में हर औरत किसी न किसी दर्जे पर अमल ज़रूर कर सकती है। शरय शरीफ ने इंसानी हालात की वजह से इसमें वसाअत रखी है। पर्दे का मदार फितने पर है और फितने से बचने के लिए जितनी एहतियात हो सके उतना ही ज़्यादा बेहतर है। नंबर 1, बेहतरीन दर्जा, घर में रहकर पर्दा करना। इरशाद बारी ताला है, और तुम अपने घरों में करार पकड़ो। लिहाजा औरत के लिए पर्दे की सबसे आला सूरत यही है कि घर की चार दीवारी में वक्त गुजारे, अपने घर को अपनी जन्नत समझे। औरत काम काज और ज़िक्र व इबादत से फारिग हो तो घर के सहन में खेल कूद सकती है। लड़कियां आपस में आँख मिचोली खेले, रस्सी फलांगे, पेंगे चढ़ाए, हल्की पुल्की वर्जिश करे, ट्रेडमिल मशीन पर दौड़ लगाए। सहन छोटा है तो पर्दे वाली छत का इस्तेमाल की जा सकती है ताकि वर्जिश हो जाए और गैर मर्दों की नज़रों से दूर अपने घरों में छिपी औरतें अपनी दुनिया में मस्त रहे। न डर, न खौफ, न फ़िक्र, न गम, और शरई हदों में रहते हुए जिस्मानी वर्जिश की ज़रूरत पूरी हो गई। अक्सर औरतें घर में झाड़ फूँक, कपड़े धोने, इस्त्री करने, खाना पकाने, सिलाई सुथराई वगैरह काम करके थक जाती है। मजीद वर्जिश की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। लिहाजा घर में रहते हुए औरत की हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। इस दर्जे पर अमल करने वाली औरत विलायत के दर्जात पाने वाली और कुर्बे इलाही को हासिल करने वाली होती है। नंबर 2, दरमियानी दर्जा यानी बुर्के का पर्दा। अगर मजबूरी में बाहर निकलना ही पड़े तो बुर्का या चादर खूब अच्छी तरह लिपट कर निकले। इरशाद बारी ताला है, अपने ऊपर चादर ओढ़ ले। आजकल पर्देदार औरतें बुर्का पहनकर जिस्म को छुपा लेती है, जबकि दस्ताने और मोज़े पहनकर हाथ पाँव की जीनत को छिपा लेती है। बल्कि बाज़ इलाक़ों में शटल कॉक का बुर्का इस्तेमाल होता है। ये सब कुछ जलबाब ही की किस्म है। इसी तरह देखने वाले गैर मर्दों को कद व कामत और जसामत का अंदाज़ा हो भी जाए तो भी जीनत छिपी रहने की वजह से फितने का अंदेशा कम होता है। यह एहतियात करना ज़रूरी है कि बुर्का इतना नक्श व निगार वाला न हो कि देखने वाला समझे कि अंदर कोई हूर की बच्ची मौजूद हो। आजकल के मर्दों की निगाहें औरत के बकिया जिस्म पर न भी पड़े तो हाथ पाँव पर नज़र डालते ही औरत के हुस्न व जमाल का अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसलिए हाथ पाँव छिपाना भी ज़रूरी है। ये पर्दे का दरमियानी दर्जा है। इस दर्जे पर अमल करने वाली औरत तक़वे पर अमल करने वालों में शुमार होती है। नंबर 3, आखिरी हिजाब यानी मजबूरी का पर्दा। पर्दे का आखिरी दर्जा यह है कि औरत मजबूरी की वजह से घर से निकले और चादर या बुर्का इस तरह पहने कि उसके हाथ पाँव आँखें वगैरह खुली हो। इरशाद बारी ताला है, अपना सिंगार न दिखलाए,
मगर वह जो खुद हाजिर हो जाए। औरत के लिए अपनी जीनत की किसी चीज़ को मर्दों के सामने ज़ाहिर करना जायज़ नहीं, सिवाय इसके जो अपने आप ज़ाहिर हो जाती है, यानी काम काज और नकल व हरकत के वक्त जो चीज़ें आदतन खुल जाती है और उनका छिपाना बहुत मुश्किल होता है, उनके इजहार में कोई गुनाह नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाया कि इससे मुराद हथेलिया और चेहरा है, मगर ये उस वक्त है जब फितने का खौफ न हो। अगर फितने का डर है तो फुकाए उम्मत का इजमा यानी इत्तफ़ाक़ है कि औरत के लिए चेहरा और हथेलिया खोलना भी जायज़ नहीं। बस इस आयत से ये बात साबित हुई कि अगर लेन देन की ज़रूरत में औरत के हाथ व पाँव और आंखें खुली हो तो कोई गुनाह नहीं होगा, मगर इस आयत से ये बात कहीं साबित नहीं होती कि मर्दों को उनके आज़ा की तरफ देखना जायज़ है। मर्दों के लिए तो हुक्म वही है कि अपनी निगाहें पस्त रखे, शरई ज़रूरत के बगैर औरत के हाथ पाँव और चेहरे को न देखे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।